Hello students, in the previous class we have discussed the concept of yes, we have discussed the concept of we have discussed the concept of we have discussed the concept of forgot. Okay, we have discussed the concept of motivation and we have discussed the concept in which incentives and non-incentives motivation. In today class we are going to introduce the concept of leadership. What do you mean by leadership? As the name suggests, who is a leader? In common language we say that leader, but what is the actual meaning of leader? Leader means a person who influence the behavior of others, who has the ability, who has the capability, who has the power to influence the behavior of other is called the leader. And in this way we can say that leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives. Yes, leadership is the activity of influencing people, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप. Is that it is an activity. Leadership is an activity of influencing to people strive willingly for the mutual objectives. Managers at all levels are expected to be the leader of these subordinates. जितने भी लेवल पे मैनेजर होते हैं, they could be the thing that the leader of their subordinates. But the leadership is not that quality which is gained by the post. It is a quality which is gained or which is get from its internal, or it can be gained by the way how he deals the people or she deals the people. That's why leadership is not the position arise due to the yes. Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relationship with the followers and motivate them to contribute for achieving the organizational objective. So what is leadership? Leadership indicates the ability, it is the ability to maintain a good personal relationship with the followers. फॉलोअर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना और उनको मोटिवेट करना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप. तो फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ इट इन्फ्लुएंस द अदर्स. ये क्या करता है? दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है. लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर्स. वो दूसरों के बिहेवियर को भी बदलता है. लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. ये क्या करता है? इंटरपर्सनल रिलेशन बनाता है. किसके बीच में? लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में. तो लीडरशिप में क्या क्या हुआ? पहला, फर्स्ट, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. सेकंड वन, it bring the change in the behavior of other, it influence the others, and it establish the interpersonal relationship between leaders and the follower. Leadership is an exercise to achieve common goal of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना भी लीडरशिप का एक पार्ट है. लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. और लीडरशिप क्या है स्टूडेंट्स? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. यस, तो सेम फीचर्स, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, दूसरों की इनर कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करना, लीडर्स और फॉलोअर के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, कॉमन गोल्स को अचीव करना और कंटिन्यूस प्रोसेस. स्टाइल ऑफ लीडरशिप में हम तीन स्टाइल्स की बात करेंगे. पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, थर्ड वन इज थर्ड वन इज लेजी फेयर और फ्री रेन लीडर. सबसे पहले ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज जस्ट लाइक ए डिक्टेटरशिप, तानाशाही. जिसने जो ऑर्डर दे दिया वही फॉलो होगा. इंसिस्ट दे आर ओबेड, और वो उसको ओबे करें. ही डिटरमाइंस द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग दैम, और वो पॉलिसी बनाता है बिना दूसरों से कंसल्ट किए. ठीक है? ही पुट, बस बना दी पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर दी. ही डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर प्लान्स. वो फ्यूचर प्लान्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बट सिंपली टेल्स द ग्रुप व्हाट इमीडिएट स्टेप मस्ट टेकन, और बताता है क्या इमीडिएट स्टेप लेने. दैट इज कॉल्ड
ऑटोक्रेटिक। इज दैट क्लियर? और इस जो लीडरशिप स्टाइल है उसमें सारी पावर जो सेंट्रलाइज होती है लीडर के पास चली जाती है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई भी फ्रीडम नहीं देता, उसके बिहेवियर को किसी भी तरह इन्फ्लुएंस नहीं करता। और इसको क्या बोलते हैं, इट्स बोसिंग पीपल अराउंड। दिस स्टाइल शुड बी नॉर्मली इज यूज इन रेयर ओकेजन। आज के टाइम में बहुत कम स्टाइल है। अगर हम बिजनेस में करें तो लीडरशिप स्टाइल आज के लिए बहुत कम हो गया। हाँ, कुछ डिसीजंस में कुछ कंडीशंस में हम कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट लीडरशिप स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दिस लीडरशिप स्टाइल दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक, यानी तानाशाही, एक बार जो कह दिया वही मानना है। कहाँ पर सूटेड है? जहाँ पे कम टाइम हो, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि खत्म हो चुका है, लेकिन जहाँ पे टाइम कम हो और फटाफट डिसीजन लेना हो, और जहाँ लीडर बहुत नॉलेजेबल बंदा हो, सारे मेंबर से सबसे बढ़िया मेंबर में सबसे बढ़िया नॉलेज में रखा हो, दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप स्टाइल। इसमें आपको दो इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये एक स्टडी कर लेना। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप एंड वर्क आउट्स द पॉलिसीज विद द अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है डेमोक्रेटिक, यानी जैसे लोकतंत्र टाइप में जो हम इस टाइम बात करें। यहाँ पे पहले अपने ग्रुप से सलाह करता है और उसके बाद वो पॉलिसी को एक्सेप्टेंस देता है। ही नेवर आस्क पीपल टू डू विदाउट वर्किंग आउट लॉन्ग टर्म प्लान्स। वो बिना नहीं करता जब तक वो लॉन्ग टर्म पहले प्लान्स डिस्कस करता है जिन पे वो काम करें। ही फेवर डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप्स इन द शोन डायग्राम। और वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। इम्प्रूव द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। वो एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है, देयर जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उनके मोराल को इंक्रीज करता है। ये बेनिफिट्स करता है सबॉर्डिनेट्स को और सीनियर्स को ज़्यादा हेल्प करता है डिसीजन लेने, यानी ये दोनों के लिए बेटर है, सबॉर्डिनेट्स के लिए भी और जूनियर के लिए। यहाँ से क्या होता है, ए से इंफॉर्मेशन जाती है डी, डी पास करता है वापस ए पे। ऐसे ए से सी, सी से बी, ए से बी, बी से सी, ए से ई और ई से ए। तो ये क्या होता है, ग्रुप सेंटर्ड होती है, यानी ग्रुप सारी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद अब ये कहाँ पे होती है, जहाँ पर सारे ग्रुप मेंबर स्किल्ड हो और अपनी नॉलेज को शेयर करने में इंटरेस्टेड हो। और दूसरा, यहाँ पे टाइम भी हो, तभी ये होता है। ये कहाँ पे नहीं सिचुएशन करनी चाहिए, सेम वही जहाँ पे टाइम की कमी हो, इन दैट केसेस। नेक्स्ट वन इज लेजी फेयर। ये सबसे है, यहाँ पर लीडर फ्रीडम देता है सबॉर्डिनेट्स, टेक योर डिसीजन, यूज योर पावर, और अपनी पावर्स को कम यूज करता है, ठीक है ना। ही लार्जली डिपेंड ऑन द ग्रुप्स टू एस्टेब्लिश इट्स ओन गोल्स। और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। वर्कआउट्स इट्स ओन प्रॉब्लम, वो उनको इंडिपेंडेंट छोड़ता है, निकालो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद। ग्रुप मेंबर वर्क देमसेल्फ हैव देयर ओन चॉइस एंड कॉम्पिटेंट्स। ग्रुप मेंबर खुद काम करते हैं। द लीडर एग्जिस्ट एज ए कॉन्टैक्ट मैन विद द आउटसाइडर्स, ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्स विच द ग्रुप रिक्वायर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स ग्रुप में ही मेंबर्स जो होते हैं, लीडर जो है कांटेक्ट करता है आउटसाइडर से, इंफॉर्मेशन लाता है और रिसोर्स विच द ग्रुप रिक्वायर्स अकम्प्लिश द जॉब, और जॉब को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मीन्स टू से ये अपने ग्रुप में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता, उनको फ्रीडम देता है। फ्रेंच लेजी फेयर मीन्स अलाउ फेयर्स मीन्स टू डू, यानी अगर वो सही ढंग से काम कर रहे हैं तो इनसाइड वो ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं करता। तो हमने थ्री टाइप्स के लीडरशिप क्वालिटी पढ़ी हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर। लेजी फेयर कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे फॉलोअर्स हाईली स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एडुकेटेड हो। फॉलोअर्स में प्राइड हो इन देयर वर्क एंड ड्राइव टू बी सक्सेसफुली ऑन देयर ओन। आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट भी, जहाँ पे हम बाहर के कंसल्टेंट को यूज़ करते हैं। फॉलोअर्स आर ट्रस्टवर्दी, फॉलोअर ट्रस्टवर्दी और एक्सपीरियंस्ड हो। इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, लेजी फेयर को यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ लीडर अवेलेबल ना हो। इसमें आपको दो एग्जाम्पल और दिए मैं, तो स्टूडेंट्स इनको ज़रूर करके देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स।